Okay, hello friends, welcome in the third lecture of physical chemistry. In my last lecture, I am discussed with you the molecular basis of entropy, and we derive one equation regarding to that, and also discuss the free energy and the entropy, that is the entropy for the translational motion. We can say that translational entropy. Okay, in further, today I am going to discuss with you the rotational entropy as well as the vibrational entropy in today's lecture. So, in rotational entropy, that is of two type. Number one, that is called for the linear molecules, and second one, that is for the non-linear molecules. As we already discussed this equation in the last lecture, that is the rotational entropy, as rotational is equal to the thermal energy, that is the thermal energy for rotational divided by temperature plus R ln the partition function for a rotational. So, now put the values here. The rotational thermal energy for 1 mole of gas, that is this term U minus U 0, that is RT, okay, that is for the linear molecules, and rotational partition function, that is the Q rotational, that is given by the equation 8 pi square I k t divided by sigma h square or 2 I k t sigma h cut square. Here that h cut, that is the 2 pi by h, the value of that h cut is it is h upon 2 pi. So, here I replace those values h by 2 pi from here, and that is replaced by h cut, both are similar equations. Now, substituting these values in particular this equation, for example, the value of Q rotational and the thermal rotational energy here, put the values here. So, this equation is write down like this, as rotational is equal to, that is R t replaced by R t by t plus R ln. Here I use that portion, this one. Okay. So, 2 I k t sigma h cut square. Now, some modification of the equation, that means t is cancel out and r is common here. So, it becomes r plus r ln this one. Then okay, give me a second please. The next one, that is r is common, r को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं common. So, here only 1 is there, 1 plus ln 2 I k t by sigma h cut square. So, that is the equation. Okay, same equation अगर हमें अब आप लिखना चाहते हो, मुझे ये टर्म नहीं लिखना है, मुझे ये टर्म लिखना है Q रोटेशनल में, तो सेम इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं, आर टी बाई टी प्लस आर एल. यहाँ पे ये टर्म की जगह पे क्या लिख दिया है, 8 पाई स्क्वायर आई के टी बाई सिग्मा एच स्क्वायर. बाकी स्टेप उसके सेम रहेंगे, तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेंगे. दोनों इक्वेशन हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज रोटेशनल एंट्रोपी लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए. ओके, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स यू कैन यूटिलाइज वन ऑफ द इक्वेशन and also substituting the values for the constant, which are the constant here. So, k is a Boltzmann constant, T is a temperature, sigma is the symmetry numbers. Okay, the value of symmetry are different for linear molecule and non-linear molecules. Okay, if you want to know the value of symmetry numbers for different molecules, you can use the reference book for the same. H is a Planck constant, pi 3.14, so R is a gas constant. When you put all the values here, I is a moment of inertia, I is equal to mu r square. Okay, mu is a reduced mass. So, I is a moment of inertia. So, the equation is like that in a standard state, that unit is joule per Kelvin mole, 877.37 plus 8.314 ln I plus ln T minus ln sigma.
Okay, that means ln I plus ln T minus ln sim, because that is in a denominator, because of that reason there was a negative sign. ln sigma, here moment of inertia it is in किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ट्रांसलेशनल मोशन में हमने दो जो इक्वेशन हमने डिराइव किए थे न्यूमेरिकल्स के लिए, फिर से दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर. दिस वन 76.57 प्लस 12.47 ln m प्लस 20.79 ln t. ठीक है, ये जो इक्वेशंस है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. सिमिलरली S0 रोटेशनल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो ये हमें ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं. ये बातें ध्यान में रखनी है. इफ़ द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ नॉट इन किलोग्राम, के यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए. इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट इन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर देन बिफोर पुट द वैल्यूज़, यहाँ पे वो वैल्यू रखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू को किलोग्राम मीटर स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको उसका राइट आंसर मिलेगा. ठीक है, तो ये कुछ बातें यूनिट से रिलेटेड है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. सिमेट्री की वैल्यू आपको दी होगी, जो भी उसका फॉर्मूला है उसमें आपको डेटा में सभी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे. टेम्परेचर की वैल्यू वहाँ पे होगी. सिर्फ आपको क्या करना है, पुट द वैल्यूज़ हियर एंड फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर. Now I am discuss with you the non-linear molecule as rotational for non-linear molecule like that is water, ammonia, those are non-linear molecule. Here linear molecules, you know, linear molecules like that is CO2, HCN, hydrogen cyanide, those are linear molecules. So for non-linear molecules, okay, generally safe molecules, that means non-linear molecules have 3 rotational degree of freedom, and the rotational thermal energy is 3 by 2 RT, U minus U0 3 by 2 RT. That means for linear molecule thermal energy is RT, but for non-linear molecules thermal rotational energy is 3 by 2 RT. So first change is here, that means in your equation this value is replaced by 3 by 2 RT, and the moment of inertia here in linear molecule only one axis is there, it's a x axis or y axis or z axis, that means only one moment of inertia. But in a safe molecule, in a 3-dimensional molecule, there are 3 axes, that means the molecule possesses 3 rotational degree of freedom in x axis, in y axis, in z axis. That means 3 kind of moment of inertia, IA, IB, IC. Okay, that means in x axis, in y axis, in z axis. So because of that reason, IA, IB, IC are your moment of inertia. The rotational partition function Q rotational is given by this equation 2 kT h cut square raised to 3 by 2 pi IA, IB, IC raised to 1 by 2 divided by sigma, or that h cut is replaced by h by 2 pi. When you put the value h by 2 pi, that means here h into h, h square, 2 pi ऊपर चला जाएगा, 2 into 2 हो जाएगा, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा. h कट की जो वैल्यू है रेफरेंस बुक में एक बार देख लीजिएगा, उसकी वैल्यू शायद h बाई 2 पाई या 4 पाई क्या है वैल्यू में आपको रेफरेंस बुक में देख के जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू है मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा मैं. सो यहाँ पे दैट इज एट पाई स्क्वायर बाई के टी 3 by 2 pi IA, IB, IC by sigma raised to 1/2. Sigma is, you know, that is a symmetry numbers. Okay, so put the values here in that equation. ये इक्वेशन पे आपको याद है, यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देते हैं 3 by 2 RT हो जाएगा. यहाँ क्यों रोटेशनल की जगह पे हम ये इक्वेशन यहाँ पे अभी यूटिलाइज कर रहे हैं. टी कैंसलर हो जाएगा तो यहाँ पे 3 by 2 हमारे पास रहेगा, 3 by 2 R प्लस R ln ये इक्वेशन रहेगा. यहाँ पे जैसे R को कॉमन लिया है फिर से R को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 by 2 प्लस ln दैट वन. ओके, व्हेन वी पुट द वैल्यूज़ हियर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ कांस्टेंट, ये हमें फाइनल इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा 1320.83 प्लस 4.157 ln ऑफ IA, IB, IC प्लस 12.471 ln T माइनस 8.3143 ln सिग्मा.
यहाँ पे I की वैल्यू है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा ये रोटेशनल एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, रोटेशनल एंट्रोपी के इक्वेशन होंगे, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अलग से होगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए भी अलग से होगा। ये जितने भी इक्वेशन है, इक्वेशन को आप अच्छे से याद कीजिएगा। ये जितने भी मैथमेटिकल फार्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं, दोस मैथमेटिकल फार्मूला आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर MCQ पर्पज़। एक आध दो पेपर में MCQ में भी ये इक्वेशन वहाँ पे आपको पूछा था, व्हाट विल बी द रोटेशनल एंट्रोपी फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। अगर ये इक्वेशन आपको याद नहीं है, आप उसका सही से आंसर नहीं लगा पाओगे। तो ये रोटेशनल के बारे में था, लिमिटेशन उसका दिया हुआ है, द इक्वेशन कैनॉट बी अप्लाई टू द मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एट वेरी लो टेम्परेचर। ये उसका लिमिटेशन है, 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है। तीसरी जो बात है वाइब्रेशनल एंट्रोपी के बारे में। वाइब्रेशनल एंट्रोपी का जो इक्वेशन हमने आगे डिराइव किया था दूसरे लेक्चर में, एस वाइब्रेशनल इज इक्वल टू यू माइनस यू जीरो वाइब्रेशनल बाई टी प्लस आर एल एन क्यू वाइब्रेशनल। यहाँ पे वो इक्वेशन हमने रखा हुआ था, डिराइव नहीं किया था। उसका डेरिवेशन अगर आपको जानना है तो एनर्जी ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूनिट पढ़ के आप वहाँ से इसका डेरिवेशन निकाल सकते हो। अगर आपको वो यूनिट रेफरेंस में चाहिए पढ़ने के लिए इसके साथ, तो मैं अपने गूगल क्लासरूम में इसका लिंक, वो जो यूनिट का PDF है, वो PDF में वहाँ पे रख दूंगा, ताकि आप इसके साथ में वो यूनिट भी देख सको रेफरेंस के लिए, कहाँ से ये सब सारी वैल्यूज़ आ रही है। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू की बात कर लेंगे। पहले थर्मल एंड वाइब्रेशनल थर्मल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे इसकी निकलेगी RT x/e⁻⁻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 ⁻
जो वैल्यू है दैट इज एच न्यू वाइब्रेशनल बाई के टी, that is h nu, it is the energy, vibrational energy. H is a Planck constant, nu is a frequency, k is a Boltzmann constant, T is the temperature. That means when you put the values here, h frequency, k, T, you can find out the value of x easily. न्यूमेरिकल में क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में आपको एनर्जी की वैल्यू दी हुई होगी. दैट मीन्स अगर एनर्जी की वैल्यू आपके पास है, दैट मीन्स यू हैव द वैल्यू ऑफ एच न्यू वाइब्रेशनल. एच न्यू वाइब्रेशनल का वैल्यू आपको दी हुई है, टेम्परेचर पता है, के कांस्टेंट है, आप x की वैल्यू इजी से वहाँ पे निकाल सकते हो. अगर आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होगी, टेम्परेचर पता है, तो ये रेशियो आप वहाँ से, ये जो थर्मल एनर्जी की वैल्यू वो आप ढूंढ सकते हो. ये वैल्यू फिर यहाँ पे रखेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू रख देंगे. क्यों वाइब्रेशनल की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अगर x की वैल्यू पता है तो क्यों वाइब्रेशनल की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. 1/1 माइनस e रेस टू माइनस एक्स की वैल्यू रख दीजिए, क्यों वाइब्रेशन भी मिल जाएगा. ऐसे हम पूरे न्यूमेरिकल को हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, अभी ये इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ पुट दोज वैल्यूज़, ये जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे हम रख देते हैं, हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, आर टी एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स माइनस 1/t आर एल एन 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स. ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं. टी टी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा उस इक्वेशन में, कुछ इस तरह से मिलेगा, एस वाइब्रेशन इक्वल टू आर एक्स माइनस 1 प्लस आर एन 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स. ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम वैल्यूज सभी रख देंगे तो हमें ये इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, 8.314 एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स माइनस 1 माइनस एल एन 1 माइनस एक्स. ये आपको सभी इक्वेशन जितने भी डेटा है आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई हमारी रोटेशनल एंट्रोपीज़ के वाइब्रेशनल एंट्रोपी के बारे में. कि आज के लेक्चर और पिछले लेक्चर की बात करें तो ट्रांसलेशनल एंट्रोपी, रोटेशनल एंट्रोपी, लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल एंड वाइब्रेशनल एंट्रोपी, इतने जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो सभी आपको याद रखने पड़ेंगे एज अ पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. Now the most important 2 marks short question from this unit, that is called the Trutton's rule. कई बार कई पेपर में इस यूनिट में से अगर 2 मार्क्स का कोई शॉर्ट क्वेश्चन निकालना होता है सॉरी, तो ये 2 मार्क्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा. पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. द एम्पिरिकल जनरेशन अबाउट द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज नोन एज द ट्रूटन्स रूल. क्या है ट्रूटन्स रूल, तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है दैट इज़ द
जनरलाइजेशन अबाउट द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड। जब कोई भी लिक्विड होता है वो अपने लिक्विड स्टेट से वेपोराइज जब होता है तो वो वेपोराइज होने के बाद उसका एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है, उसका वो पूरा जनरलाइजेशन एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसे हम क्या बोलते हैं, टूटन्स रूल बोलते हैं। उसका जो स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड that is called delta H of vaporization. H stand for enthalpy. The ratio of enthalpy of vaporization of liquid to its normal boiling temperature TB. Boiling temperature is approximately the same for all liquids. ठीक है, इसे मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर TB अप्रोक्सीमेटली रिमेन सेम, दैट मीन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 88 जूल पर केल्विन पर मोल, इतनी इसकी वैल्यू हमेशा रहती है। ओके, इट इज सेम फॉर ऑल द लिक्विड्स। तो ये हमारा पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। इसे यहाँ से स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो, द रेशियो दैट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड to the normal boiling temperature is approximately same or constant for all the liquids, ठीक है। Now for 1 mole of any liquid, the delta S of vaporization, that means the entropy change, that is given by the partition function reversible divided by T, dq reversible by T, that is equal to that one, delta H of vaporization by TB, that is equal to constant. So according to the Trutton's rule, कह सकते हैं हम, the increase in the entropy is the same when 1 mole of any liquid is vaporized into gas at normal boiling point. ये उसका दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, the increase in entropy, that means according to this equation, the increase in the entropy is the same when 1 mole of any liquid is vaporized into gas at normal boiling point. The scope of this rule is remarkable with few exceptions also. इसके आगे मैं वो exception भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। The entropy of vaporization of simple and inorganic compounds, ionic solid metals always lies between 88 or 21. Okay, that is 88 जूल पर केल्विन पर मोल। उसका ये कैलोरी का वैल्यू है 21 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये जो पूरा डेटा है, ये डेटा हम MCQ में इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर मस्ट बी कंपेयर विद द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। ये कुछ उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो हमें एक इक्वेशन जो निकल के यहाँ पे आता है, द ट्रांसलेशनल एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड वेपर आर नॉट सेम, हैंस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल जो एंट्रोपी की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो सेम नहीं आती है। रोटेशनल और वाइब्रेशनल की वैल्यू सेम रहती है। अगर ट्रांसलेशनल एंट्रोपी के लिए मुझे इक्वेशन लिखना हो तो वो कुछ इस तरह से होगा, डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू SV माइनस SL दैट इज इक्वल टू RLN V डिवाइडेड बाई VF। ये क्या है, सभी वैल्यू लिखी है यहाँ पे। VV दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वेपर एट इक्विलिब्रियम एंड VF इज द फ्री वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज अ फ्री वॉल्यूम? आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं तो उसमें जो बीच में जो कैविटी बनती है, जो स्पेस बनती है, उसे बोलते हैं फ्री वॉल्यूम। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ होल्स और स्पेस दैट इज नोन एज अ फ्री वॉल्यूम। SV is SL, that is the vapor, entropy of a vapor, entropy of a liquid, L stand for liquid. Okay, delta S of vaporization is equal to SV minus SL is equal to RLN V, that is equal to 30,000 by 1, that is constant 88 joule per, because the volume VV for room temperature is 100 ml, that is 30,000 ml. The value of VV is 30,000. Sorry, that is a mistake here. When you put the values here, okay, for 100 ml of liquid, the value of VV is 30,000 and the value of the empty space is 1%. That means that is 1
1% of the 100 ml. That's why I put the values here. You got the answer. Some exceptions are also mentioned here. Number 1, that is very low boiling liquids like hydrogen, helium, so less delta S of vaporization, less than the average value. That means हाइड्रोजन एंड हीलियम हैज़ अ लो वैल्यू कंपेयर टू 88 जूल किलो पर मोल, इससे उसका वैल्यू कम होगा. डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन डिटरमाइन एट अ टेम्परेचर एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर इज 1 मोल in 24.8 liter. The values comes into line. Now the substance forming dimers, that means two molecules are combined and give a single molecule, that is called dimer. Di means two, mers means unit. When two units combine together form a new compound, that is called dimer, like acetic acid, formic acid. Okay, for those compounds the delta S vapor is also less compared to the original value. The substance like water, ethanol also has a higher value compared to the average value. That means in these exceptions, hydrogen and helium shows less value compared to 88 joule per mole. Dimer forms hydrogen bonds. Because of that reason, they also possess less delta S vaporization value than the average value of 88. But in ethanol like water or molecules, the value of delta S of vaporization is higher compared to the 88 joule per mole. So these data are also important. 2 marks short questions are there. What are the exceptions in a two-terms rule? Okay, these are the exceptions, and we can use those data for MCQ purpose also. Now free energy. Free energy is a property that provides a convenient measure of the driving force of a reaction. Entropy change is the change that takes place in the system as well as the surrounding. So here the delta S of universe, that is called the entropy universe, and entropy of the universe, that is equal to delta S plus delta S of thermal, that is equal to delta S minus this value is from here surrounding delta H by T. Okay, but for free energy, that is G is equal to H minus Ts. Okay, delta, that means change in free energy is equal to change in enthalpy minus T into change in entropy. So from this equation we can say that when you put the value of T delta S of universe is equal to minus delta G, these three conditions are most important for MCQ. All these three conditions are important for MCQ. Okay. So these conditions, number 1, in many papers those conditions are useful for MCQ purpose. If delta G is negative, the reaction can proceed spontaneously. Delta G is positive, the reverse reaction can proceed spontaneously. And delta G is 0, the reaction would proceed reversibly at a state of balance. So keep those values in your mind, please. Delta G is negative, reaction is spontaneous, positive, reverse reaction is spontaneous, 0, reaction would proceed reversibly at a state of balance. So those are important for MCQ purpose. Then free energy and pressure. It's very easy derivation of the equation. And the free energy of a gas depends on the pressure that confines the gas. So G is equal to H minus Ts. अभी हमने आगे इक्वेशन देख लिया था. एंथैल्पी H is equal to U plus P. ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखने पड़ेंगे. D is mentioned here, that is change in energy. dG is equal to dH minus D of Ts. ठीक है, पहले ये इक्वेशन को हमने यूटिलाइज किया यहाँ पे. फिर ये जो वैल्यू है यहाँ से, ये वैल्यू हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है. H का वैल्यू यहाँ पे आप रख दोगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा. dG इज इक्वल टू D, H के रिप्लेस हो जाएगा H U प्लस पी वी. तो यहाँ पे ये बन जाएगा U प्लस पी वी माइनस डी टी एस. ये ब्रैकेट पूरा खोल देते हैं यहाँ पे. dG इज इक्वल टू डी यू प्लस, पहले क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो P इंटू डी वी प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम इंटू डी पी. तो ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे. ऊपर से यहाँ से ही लिखा हुआ है
कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, माइनस अभी ये टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देंगे तो टेम्परेचर T कांस्टेंट हो जाएगा तो ds बन जाएगा, माइनस S एंट्रोपी को हम कांस्टेंट कर देंगे तो S बाहर आ जाएगा और dt हो जाएगा। पूरा इक्वेशन हमने यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो उसके बाद जितनी भी स्टेप है बड़े ही ईजी स्टेप है, 1 बाय 1 उसे लिखते जाना है तो पूरा हम फाइनल इक्वेशन इसका डिराइव कर लेंगे, ठीक। कोई भी अगर ऑर्डिनरी प्रोसेस होगा तो उसका जो P और dV का जो वैल्यू है वो वहाँ पे इन्वॉल्व रहता ही है। P dV का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से बनेगा, P dV इज इक्वल टू चेंज इन थर्मल एनर्जी एंड T ds इज इक्वल टू माइनस du ऑफ थर्मल एनर्जी। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में फिर से रख देते हैं। देखिए P dV वॉज रिप्लेस बाय du थर्मल एंड T ds इज रिप्लेस बाय माइनस du थर्मल, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, du प्लस du थर्मल प्लस VdP माइनस ये माइनस du थर्मल है माइनस SdT, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये पूरा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ में एनर्जी कंजर्वेशन का जो हमारा लॉ है उसमें लिखा है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी उसका यूनिवर्स का कांस्टेंट रहता है तो जितनी भी यू टर्म्स है थर्मल एनर्जी की टर्म्स है वो सभी ज़ीरो हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जितनी भी टर्म्स जहाँ पर हमने थर्मल एनर्जी यूज़ की है वो सभी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये टर्म ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म हमारे पास रहेगी, तो दो टर्म यहाँ पे लिख देते हैं, dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, ओके। और उसे स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, dg इज इक्वल टू dg बाई dp इंटू dp प्लस dg बाई dt इंटू dt। यहाँ पे dg dp क्या है, दैट इज़ योर वॉल्यूम, dg बाई dp इज़ योर वॉल्यूम एंड dg बाई dt इज़ योर एंट्रोपी माइनस s, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन में हमने इसे रिप्लेस कर दिया है। फिर उसका हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन ले लिया है, उसका प्रेशर जो उसका कंडीशन है, प्रेशर का कंडीशन में P1 टू P2 लिया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, G2 माइनस G1 इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ VdP दैट इज इक्वल टू nRT इंटीग्रेशन P1 टू P2 dP बाई dP nRT ln P2 बाई P1, ठीक है। और यहाँ ये इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन इस तरह से, P1 प्रेशर जो इनिशियल प्रेशर है अगर 1 बार ले लेते हैं तो G1 का वैल्यू G0 हो जाएगा और P2 का फाइनल प्रेशर P बार लेते हैं तो G2 का G हो जाएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, G2 becomes G, G1 becomes G0 that is equal to n is the number of moles 1 moles या RT ln P by 1, ठीक है। यहाँ पे P by ये पूरा हो जाएगा 1, P by 1 हो जाएगा आपका, P1 is equal to 1 बार, दैट्स वाई। सो ये पूरा इक्वेशन आपका हम इस तरह से लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू G0 RT ln P, ये हमारा फाइनल इक्वेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। द इक्वेशन इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द आइडियल गैस वेयर T इज कांस्टेंट, P इज इन बार एंड I इज मोल ऑफ आइडियल गैस। सॉरी दैट इज n इज अ मोल ऑफ आइडियल गैस। तो ये जो पूरा जो डेरिवेशन था ये 5 मार्क्स, इसका जो वेटेज है 5 मार्क्स का उसका वेटेज है। इन दैट पर्टिकुलर पेपर स्टाइल इट मस्ट बी 8 मार्क्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, डिराइव द इक्वेशन G माइनस G0 इज इक्वल टू RT ln P। ये आपका पूरा इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा, इसे डिराइव करना है, वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। जो हमारा अगला जो टॉपिक है द एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। बड़ा ही इजी टॉपिक है ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से 5 मार्क्स में उसका वेटेज है, इस तरह से आता है, डिराइव द इक्वेशन डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिराइव द इक्वेशन डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K। कैसे इसे डिराइव करना है, बहुत ही ईजी है, 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। पहले देख लेते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बाय द रिलेशन। ये इक्वेशन आपको पता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K, K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ये जो ए बी सी डी है वो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर टी दिया हुआ है और जो प्रेशर है पी, टोटल प्रेशर उसका पी है। ए बी सी डी जो स्मॉल नंबर्स हैं वो क्या है आपके द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अगर मुझे ये इक्वेशन लिखना है ए के लिए, सिर्फ ए के लिए, तो ये मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, स्मॉल ए इंटू जी ए। ठीक है, यही इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ए इंटू जी ए इज इक्वल टू ए जी ए ज़ीरो प्लस आर टी एल एन पी ए। ठीक है, ये अलग से मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्री एनर्जी, ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन अलग है हमारा, ये हम लिख रहे हैं सिर्फ फ्री एनर्जी के लिए। एवरी गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दैट मीन्स फॉर A molecule A, the free energy will be AGA is equal to AGA0 plus RTLNPA प्रेशर। B के लिए भी इक्वेशन सेम बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जो A है उसे हम क्या करेंगे, B से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ पे स्मॉल a है वहाँ पे स्मॉल b हो जाएगा, जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल b हो जाएगा। इसी तरह से आप A B C D सबके लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने A B C D के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर क्या होगा, द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है डेल्टा जी टोटल इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये फ्री एनर्जी का वहाँ पे समेशन हो जाएगा प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, C प्लस D हमारा प्रोडक्ट है, A और B हमारा रिएक्टेंट है। तो ये जो चेंज है ये हमारा क्या हो जाएगा, द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट GC प्लस GD, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, AGA माइनस BGB। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो एनर्जी चेंज, सॉरी यहाँ पे गलती से प्लस लिख दिया, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमें इस तरह से मिल जाएगा डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो टर्म है ये पूरा आपका जो है ये प्लस निकलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है, इसे लिख देते हैं सही से। दैट इज डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट द टोटल एनर्जी चेंज। ठीक है, अगर आपको ढूंढना है द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, वो कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने से मिल जाएगा। सो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे क्या निकलेगा, क्या है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू CGC प्लस DGD माइनस AGA प्लस BGB। तो ये पूरा इक्वेशन कुछ इस तरह से फिर हमको मिलेगा, C0 प्लस DGD0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ से, तो ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, नाउ पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये पूरा जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो ये इक्वेशन में कुछ इस तरह से मिलेगा, DG इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में क्या है हमारे पास ln ऑफ k, और k की वैल्यू हम प्रेशर के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, दैट इज़ फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यहाँ पे ये प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ये कुछ इस तरह से निकलेगा। ये जो पूरा टर्म है आपका ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा G0। तो ये होगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RTLN दिस वन। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा G0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसे मैं अगर इक्विलिब्रियम इक्वल टू से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो जो साइन है वो क्या इसका बन जाएगा, नेगेटिव साइन बन जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT। ये माइनस यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि डेल्टा G0 को मैं इस तरफ से ले जा रहा हूँ तो वो माइनस बन जाएगा, उसमें प्लस करने के लिए ये प्लस साइन हो माइनस हो जाएगा, माइनस RTLN दिस वन। इसे अगर रिप्लेस करेंगे KP, दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, KP इज़ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सी ये जो वैल्यू से रिप्लेस करनी है, 1 बाय 1 आप वैल्यूज़ रखोगे यहाँ पे, तो ये पूरा जो फाइनल इक्वेशन है वो आप वहाँ पर डिराइव कर सकते हो। फ्री एनर्जी फंक्शन क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। फ्री एनर्जी फंक्शन इज़ द प्रॉपर्टी दैट कनेक्ट्स द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टू द केमिकल इक्विलिब्रियम एट एनी टेम्परेचर।
उसका जो क्वांटिटी है द G0 माइनस H0 एट 298 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय T, that quantity is known as free energy function, and that is based on 298 Kelvin. The free energy function values at various temperature can be calculated from the tabulated values of 25 degree Celsius and heat capacity data and enthalpy values for any phase change. ठीक है, अगर फ्री एनर्जी फंक्शंस की वैल्यू आपको निकालनी है, यू मस्ट रिक्वायर द हीट कैपेसिटी डेटा, एंथैल्पी वैल्यूज एट phase change, okay, for any phase changes. Phase change, that means from gas to liquid, liquid to solid, solid to gas, like that. So that is all about free energy function. Okay, so that's all about today's lecture. If you have any doubt in your mind after watching the video, then comment your questions in the box, or you can contact me on WhatsApp, my WhatsApp number also. Thank you for watching.